Today, the world has turned into a global village. With the help of efficient and fast moving transport and communication to achieve, with the help of equally developed communication system. Therefore, uh, transport and communication and trade are complementary to each other. Mark these lines. This is your first question that will come in the paper, and the question will be, how has world turned into a global village? Why has the world turned into a global village? Because of fast moving transport. First point is fast moving transport and developed communication system. So these are the 2 points which are very important in this answer. So the other 3 points, it says transport, communication and trade are complementary to each other. Discuss. For this question also the same answer will come. So the question will be the same, answer will be, questions will vary but answers will be the same. Next question that is going to come is this question: means of transport and communication. Means of transport and communication, if you try to see, what is it saying? कि ये figure, if you see, this figure comes in the paper, and sometimes they say what are the parts of this particular headings, like roadways, railways, pipelines, they will remove. And once they have removed those headlines, they will ask children to identify what are these. So under the land it is railways, roadways and pipelines. Under the water it is inland ways and overseas and domestic and international airways and public transport. They are all a part of this. This can again turn into a question. I am marking it for you. And what is the question? That dense and efficient network of transport and communication is a prerequisite for local, national and trade to take place. So in this you will have to use gift of gap. Okay, because if there is no transport, then we will not be able to develop any of the services that exist. So with this we come to a very important question. So what is the question? The question is the growing importance of road of transport vis-a-vis rail transport is rooted in different reasons. Discuss. So when this question comes, I have highlighted it for you. Okay. Construction cost of road is lower than the railway lines. So one character of the roads is this, that their construction cost is lower. Secondly, they can go transverse. Transverse matlab they can go teda meda. Okay. Then they can go undulating topography. कैसी भी टोपोग्राफी हो, गोल गोल घूमते हुए चली जाएंगी. और अगर हायर ग्रेडियंट होगा तो ट्रेन उतने हायर ग्रेडियंट पर नहीं जा पाएगी. रोड ट्रांसपोर्ट इज इकोनॉमिकल फॉर फ्यू पीपल एंड स्मॉल. अगर सोचो आपके पास 4 लोग हैं और आपको कहीं जाना है, सोचो आपको राजस्थान तक जाना है, तो फिर भी आपको रोड ट्रांसपोर्ट फायदेमंद होगा, क्योंकि अगर आप अपनी गाड़ी से जा रहे हैं तो आपको सस्ता पड़ेगा. मगर अगर आप कन्याकुमारी जा रहे हैं 4 लोगों को लेके, तो रोड ट्रांसपोर्ट से ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा हो जाएगा? रेलवेज हो जाएगा, क्योंकि रेलवेज चीपर पड़ेगा. ठीक है, लॉन्ग डिस्टेंस के लिए रेलवेज. रोड ट्रांसपोर्ट की बहुत अच्छी एडवांटेज क्या है कि वो डोर टू डोर सर्विस प्रोवाइड करता है. मतलब आपके घर के पास जब भी कोई सामान लेके आता है, आजकल तो हम सब कुछ बाहर से मंगवा रहे हैं, है ना, डिजिटली, तो वो कैसे आ रहा है? कोई ट्रेन से थोड़ी आ रहा है. ये थोड़ी कोई ट्रेन से उतरता है आपके घर के सामने और एकदम आ के दे देता है, क्योंकि आपके घर के सामने ट्रेन थोड़ी है. आपके घर के सामने तो एक रोड है. हो सकता है वो गुजरात से ट्रेन में आ रहा हो, मगर जब तक वो आपके पास पहुंचेगा तब वो किस पे होगा? वो किसी रोड ट्रांसपोर्ट पे आ रहा होगा. तो रोड ट्रांसपोर्ट डोर टू डोर सर्विस प्रोवाइड कर देता है. और अगर तो आपको प्लेन पकड़ने भी जाना है तो आप रोड ट्रांसपोर्ट से जाएंगी, मतलब वो एक फीडर बन जाएगा और ट्रांसपोर्ट्स के लिए. तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन होगा. 5 नंबर का क्वेश्चन होगा, एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ रोडवेज ओवर रेलवेज. अब वो कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके पेपर में आएगा वो आएगा,
roads can be classified in the following 6 classes according to their capacity. तो अगर क्वेश्चन आया how can road be classified in accordance to their capacity, तो हम उस आंसर में ये लिख सकते हैं कि roads can be classified in accordance to their capacity, और उसके बाद ये जो नीचे characters of roads लिखे हैं, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट रोड कौन सी हो गई, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल और सुपर हाईवेज। दूसरा पॉइंट पे क्या आया, नेशनल हाईवेज, नंबर 2 पे आ गया। तीसरे पे आया स्टेट हाईवेज, चौथे पे आया डिस्ट्रिक्ट रोड्स, पांचवें पे आया अदर रोड्स, छठे पे आया बॉर्डर रोड्स। तो आपका जो क्वेश्चन था वो कह रहा था कितनी रोड्स हैं, 6 क्लासेस अकॉर्डिंग टू, तो ये 5 नंबर का क्वेश्चन आराम से हो सकता है, 1 2 3 4 5 6। और बॉर्डर रोड के बाद अब इस 6 कैटेगरीज में पहली जो रोड है वो कहां से जा रही है, ठीक है। ये बहुत आसान है, कन्याकुमारी। कन्याकुमारी से एक सड़क जाती है, और वो कहां तक जाती है किसी को पता है, वो जाती है श्रीनगर तक। तो आप याद रखिए कन्याकुमारी टू श्रीनगर। उसके बाद हम क्या देखते हैं कि एक है ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर, ये असम टू सिलीचर है, इसको भी हमने हाईलाइट कर दिया। अब हम इसको आपको दिखाते हैं, ये देखिए ये आपकी कन्याकुमारी है, और यहाँ ये आपका श्रीनगर। तो ये श्रीनगर टू कन्याकुमारी ये आपका होगा नॉर्थ साउथ कॉरिडोर। उसी तरीके से ये पोरबंदर टू सिलीचर, ये लिखा सिलीचर और ये लिखा पोरबंदर, ये आपका ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर। सनराइजेज इन द ईस्ट, ईस्ट सिलीचर है, वेस्ट पोरबंदर। तो ईस्ट टू वेस्ट कॉरिडोर सिलीचर टू पोरबंदर, नॉर्थ टू साउथ कॉरिडोर कन्याकुमारी टू श्रीनगर, और अगर नॉर्थ की तरफ से शुरू करना है तो श्रीनगर टू कन्याकुमारी, राइट। तो ये बहुत अच्छी तरीके से हमारे को याद हो गया। अब हमारे को जो याद करना है वो है गोल्डन क्वाड्रिलेटरल। अब ये देखो गोल्डन क्वाड्रिलेटरल सबसे ऊपर लिखा है। तो गोल्डन क्वाड्रिलेटरल क्या है, ये एक प्रोजेक्ट है जिसमें दिल्ली से आप चलें गोल्डन क्वाड्रिलेटरल की सड़क पे, तो बहुत ही अच्छी बनी हुई सड़क है, नॉर्थ साउथ कॉरिडोर ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर से भी अच्छी, और वो सड़क मुंबई तक जाएगी, और बहुत ही अच्छी बनी हुई सड़क है। तो दिल्ली टू मुंबई आप आराम से जा सकते हैं, और मुंबई से चलिए तो आप सीधे चेन्नई तक आराम से जा सकते हैं, और चेन्नई से लेके आप चलें तो कोलकाता तक जा सकते हैं। तो ये क्या करेक्टर है इस सड़क का कि ये सारे के सारे पोर्ट्स को जोड़ रही है। अगर आपको देखो तो कलकत्ता पे एक बहुत माना हुआ पोर्ट है, उसी तरीके से पारादीप भी एक पोर्ट है ना, विशाखापट्टनम भी एक पोर्ट है। तो ये सड़क इस तरीके से बनाई गई है कि जितने भी पोर्ट्स हैं उनको ज्वाइन कर लिया जाए। तो ये आपका गोल्डन क्वाड्रिलेटरल होगा, उधर नॉर्थ साउथ कॉरिडोर भी होगा। तो जिस भी गाड़ी को सामान लेके जाना है तो वो पोर्ट से, क्योंकि अगर हम देखें तो हमने पढ़ा था कि a dense network of efficient transport and communication is a prerequisite for national and global trade of the country। तो डेंस नेटवर्क बहुत जरूरी है, और वो डेंस नेटवर्क जो है वो हमारे को यहां पर दिख रहा है, ठीक है। तो उसके बाद हम क्या देखते हैं कि ये हमारा गोल्डन क्वाड्रिलेटरल हो गया, नॉर्थ साउथ कॉरिडोर हो गया, ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर हो गया।
अब नेशनल हाईवेज जो हैं उसके अंदर वो तो होती है नेशनल कैपिटल से जुड़ती हैं। अगर आप यहाँ देखें तो ये जो सारी की सारी रोड है इनके ऊपर NH लिखा है, NH विद नंबर्स। तो मतलब ये जो बीच की सारी सड़कें इनको NH कहते हैं, और ये सब दिल्ली पे आके जुड़ती हैं कहीं ना कहीं से होते हुए, तब नेशनल कैपिटल से जोड़ती हैं सारी सड़कें, तो इनको NH बोला जाता है। इन्हीं कुछ NH को जोड़ के बड़ा करके गोल्डन क्वाड्रिलेटरल में भी यूज किया गया है। इन्हीं में से कुछ NH को जोड़ के नॉर्थ साउथ कॉरिडोर में भी यूज किया गया, ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर में भी यूज किया गया, कुछ नई सड़कें बनाई गई हैं। क्या किया गया कि उन सड़कों के ऊपर फैसिलिटीज को बढ़ाया गया, उन सड़कों का साइज बड़ा किया गया है, ताकि जब गाड़ी वहां पर से जाएगी तो बहुत तेजी से जा सकती है। तो ये अचीवमेंट है इन सड़कों को बड़ा करने का। तो सबसे ज्यादा बड़ी अगर आपको सड़कें देखनी है तो वो आपकी गोल्डन क्वाड्रिलेटरल की हैं, वो सबसे ज्यादा बड़ी सड़कें हैं उसके अंदर। मतलब उसका मेंटेनेंस भी बहुत अच्छा है, और उसको मेंटेन करना है NHAI। अब हम आगे देखते हैं। मैंने बोला नेशनल हाईवेज होती है नेशनल कैपिटल तक जुड़ी होती हैं। तो पहला पॉइंट आप याद रखना कि नेशनल हाईवेज नेशनल कैपिटल हाई उससे जुड़ी होती है नेशनल कैपिटल तक। नेशनल हाईवे, अभी अभी हमने नेशनल हाईवे को देखा कैपिटल से जुड़ रही थी। स्टेट हाईवे कहां पर जुड़ रही है? डिस्ट्रिक्ट रोड्स लिंकिंग स्टेट कैपिटल टू द डिफरेंट हेडक्वार्टर्स ऑफ द स्टेट हाईवे। तो अगर स्टेट से एक सड़क चल रही है, आपने देखिए मैंने कलर चेंज कर दिया, तो इसका ये वाली जो स्टेट है रोड है, ये जो है इसको कौन कंटेन कर रहा है? PWD, पीपल वर्क्स डिपार्टमेंट जो है इसको मेंटेन कर रहा है, PWD। फिर डिस्ट्रिक्ट रोड आती है जिसको जिला परिषद मेंटेन करती है। ठीक है, राइट। कौन मेंटेन करता है? जिला परिषद। तो मतलब डिस्ट्रिक्ट को हिंदी में जिला बोलते हैं, क्योंकि उसको जिला बोलते हैं तो उसको जिला परिषद मेंटेन कर रही है। अदर रोड्स, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना बनाई गई, ये अदर रोड्स में आ जाती है। ठीक है, और इस रोड को जो मेंटेनेंस है आप लिख लीजिए, ये जो है ये गांवों में एक गांव से दूसरे गांव में जाती है। मतलब नेशनल कैपिटल से चली तो स्टेट कैपिटल तक पहुंच गई, स्टेट हाईवे कहलाई। स्टेट कैपिटल से चली तो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर तक पहुंच गई, तो स्टेट हाईवे कहलाई। जब डिस्ट्रिक्ट से चली तो अदर विलेजेस तक पहुंच गई, तो डिस्ट्रिक्ट रोड कहलाई। मतलब जो बड़ी वाली जगह है उसका नाम से सड़क को बुलाया गया। और जो एक गांव से दूसरे गांव में या गांव के अंदर की सड़कें हैं उनको प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना में देखा गया। आगे बात समझ में। और उसके बाद हमने क्या देखा कि बॉर्डर रोड आई। आप देखिए हमारी गवर्नमेंट ने बॉर्डर रोड पे बहुत अच्छा डेवलपमेंट करी है। बॉर्डर रोड पे क्यों डेवलपमेंट करी है? क्योंकि बॉर्डर रोड जो है 1960 में उनकी डेवलपमेंट स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस नॉर्थ ईस्ट में ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी अगर हम देखें तो। और आज भी हम देखें डिफेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये रोड। तो ये आपकी हो गई बॉर्डर रोड्स। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, रोड ट्रांसपोर्ट क्या कैरी करती है? अगर आप देखो, सॉरी, रोड ट्रांसपोर्ट और सारी ट्रांसपोर्ट दो चीजें कैरी करती हैं। एक तो पैसेंजर होता है ना। पैसेंजर के बिना कुछ और को क्या लेके जाएगी रोड? पैसेंजर ही को लेके जाएगी। तो फिर दूसरी क्या चीज होती है जिसको रोड लेके जाती है? हाँ हाँ, दूसरा जो लेके जाती है, दूसरा है फ्रेट। अगर जो रेलवेज आता है, वी यूज द वर्ड freight. When it comes to roadways, the word used is goods. और पैसेंजर्स
रोडवेज में भी पैसेंजर होते हैं, रेलवेज में भी पैसेंजर होते हैं, तो वो भी बड़ा इजी होगा समझने के लिए, है ना। उसके बाद उसने कहा कि ये लॉन्ग डिस्टेंस को ट्रेवल कर सकती है, और हम क्या देखते हैं कि ये 150 ईयर्स ओल्ड है। मतलब पेपर के लिए आपको क्या वर्ड्स याद करने हैं, मैं आपको मार्क करके बता रहा हूँ, यही क्वेश्चंस में कन्वर्ट होंगे। मैं आपको एक एक क्वेश्चन दे दूंगा जो आपको बोर्ड में आना है, ठीक है। अब जैसे बोर्ड में ये क्वेश्चन आ सकता है, डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न ऑफ रेलवेज नेटवर्क इन अ कंट्री हैज बीन लार्जली इन्फ्लुएंस्ड बाय फिजियोग्राफिक, इकोनॉमिक एंड एडमिनिस्ट्रेटिव फैक्टर्स। ये क्वेश्चन आ जाएगा, इसीलिए मैंने आपके लिए हाईलाइट कर दिया। और आपको पूछा जाएगा, क्वेश्चन बनाने के लिए वो क्या करते हैं, सीबीएसई और एनसीईआरटी वाले, वो इसके साथ लिख देते हैं डिस्कस। तो इसके बाद द नॉर्दर्न प्लेन्स विद देयर वास्ट लेवल लैंड, high population and agricultural resources provide favorable condition for their growth। तो ये एक करेक्टर हो गया नॉर्दर्न प्लेन्स का, इसके अंदर भी सब पॉइंट्स हो गए। मगर नॉर्दर्न प्लेन्स में ऑब्स्ट्रक्शंस क्या हैं, दो प्रॉब्लम्स हैं नॉर्दर्न प्लेन्स में रेलवेज को बनाने के लिए। वो हैं, एक तो कंस्ट्रक्शन ऑफ ब्रिजेस, जो ब्रिज बनाना पड़ता है उसमें पैसा ज्यादा लग जाता है, तो कंस्ट्रक्शन ऑफ ब्रिज एक प्रॉब्लम है। अब इन हिली एरियाज जो नेचुरल टनल्स होती हैं वो यूज की जाती हैं बनाने के लिए, मगर हिली एरियाज में उतनी ज्यादा रेलवेज नहीं बनती। क्यों नहीं बन पाती इतनी ज्यादा रेलवेज? क्यों? क्योंकि एक तो हाई रिलीफ है, दूसरा स्पार्स पॉपुलेशन है, एंड लैक ऑफ इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज है। तो अगर इकोनॉमिक फायदा नहीं होगा तो रोड कंस्ट्रक्शन के चांसेस कम हो जाएंगे, ठीक है। तो अगर हम ये देखें यहाँ, यस, तो ये इसका पहला पॉइंट हो जाएगा, ये उसकी प्रॉब्लम्स हो जाएंगी। ये उसका दूसरा पॉइंट हो जाएगा, हिली एरियाज, ठीक है। और ये इसकी प्रॉब्लम्स हो जाएंगी हिली एरियाज की, पी फॉर प्रॉब्लम्स। प्रॉब्लम्स ये उसने दे रखी है। फिर अगर हम देखें, यस, तो आगे वो क्या कर रहा है, इट इज लाइकली डिफिकल्ट टू ले रेलवे लाइंस ऑन सैंडी एरियाज ऑफ वेस्टर्न राजस्थान, स्वैम्पी एरियाज। तो कहां पर रेलवे लाइंस बनाना मुश्किल है, तो ये भी उसने एक करेक्टर दे दिया। अगर आप देखें, मैं बार बार अलग अलग कलर यूज कर रहा हूँ, इसीलिए अलग अलग यूज कर रहा हूँ ताकि आपको एकदम दिख जाए कि ये पॉइंट अलग है। आई कुड यूज वन येलो बेस कलर, मगर यहाँ पर देखो ये इसने वेस्टर्न राजस्थान में क्या प्रॉब्लम है, सैंडी है, ठीक है। वेस्टर्न राजस्थान सैंडी है, गुजरात स्वैम्पी है। गुजरात का कैरेक्टर क्या है कि वो स्वैम्पी है। और फिर फॉरेस्टेड ट्रैक्स ऑफ महाराष्ट्र आ गए हैं, उसको फिर से मैं डिफरेंट कलर देता हूँ। ये एक और पॉइंट प्रॉब्लम हो गई, महाराष्ट्र में क्या प्रॉब्लम है। सो व्हाट आर द कंस्ट्रक्शंस ऑफ रोड, व्हाट आर द प्रॉब्लम्स कन्फ्रंटिंग डेवलपमेंट ऑफ रेलवेज, तो उसमें ये प्रॉब्लम्स आपकी आ जाएंगी, ठीक है।
तो यहाँ पर आप आराम से प्रॉब्लम्स को भी देख रहे हैं कि ये भी इसकी प्रॉब्लम्स है सारी की सारी। नेक्स्ट पेज पे हम देखते हैं, यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है, ये 3 नंबर का क्वेश्चन है। इन रीसेंट ईयर्स डेवलपमेंट ऑफ कोंकण रेलवेज, कोंकण रेलवे में क्या फायदा है और क्या प्रॉब्लम्स है वो सब इसमें समझा रहा है। द डेवलपमेंट ऑफ कोंकण रेलवे अलोंग द वेस्ट कोस्ट हैज फैसिलिटेटेड, तो कोंकण रेलवे की क्या एडवांटेजेस हैं, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ कोंकण रेलवे, क्वेश्चन आ गया। तो आंसर होगा कि पैसेंजर्स एंड गुड्स को लेके जा पा रहा है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट कर रहा है। अब क्वेश्चन आ गया कि व्हाट आर द प्रॉब्लम कन्फ्रंटिंग कोंकण रेलवे, तो कह रहा है कोंकण रेलवे में प्रॉब्लम क्या है कि सिंकिंग ऑफ ट्रैक हो जाता है और कई बार क्या हो जाती है वहां पर लैंडस्लाइड हो जाती है। तो आपको जो ऑरेंज वर्ड है बुक की मार्किंग में उसको बहुत ध्यान से देखना है, समझ में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, द रेलवेज हैव बीन इंपॉर्टेंट मींस, वो कह रहा है रेलवे सबसे इंपॉर्टेंट मींस है, ठीक है। तो इस लाइन को हम नहीं मार्क करेंगे। रेलवे ट्रांसपोर्ट सफर्स फ्रॉम सर्टेन प्रॉब्लम्स एज वेल, ये क्वेश्चन हो गया हमारा। व्हाट आर द प्रॉब्लम्स कन्फ्रंटिंग इंडियन रेलवेज, पहला है कि कई सारे लोग टिकट ही नहीं खरीदते, बिना टिकट खरीदे चले जाते हैं, चोरी कर लेते हैं, ठीक है जी, ये भी एक प्रॉब्लम हो गई। कुछ लोग क्या होते हैं, जहां उतरना होता है वहां उतरने के लिए चेन पुल कर लेते हैं। आप चेन पुलिंग से ट्रेन जो होती है उसकी जो स्पीड है वो रुक जाती है, सारी ट्रेन का नेटवर्क ही डिले हो जाता है, ठीक है। उसके बाद इसी के मारे वो अपने शेड्यूल टाइम पे चल नहीं पाती। तो ये क्वेश्चन आपका, अगर आप कहें कि ये सर कितने मार्क्स का आएगा, तो मैं कहूँगा ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन कितने मार्क्स का, ये भी 3 मार्क्स का है। ये इसका क्वेश्चन है, ये इधर आपका एक क्वेश्चन है, दोनों ही 3 मार्क्स के क्वेश्चन है।